Hello, students. As mentioned in the last post, markets may remain sideways for months till March 10th, 2023, and thereafter will open up its wings to fly in a direction. 10th March walked as a rock, unbeatable, unbelievable, incredible, and matchless. Now onwards, swings may be of 900 to 1500 points or even more in one direction if I look at Nifty 50. March 9th, the price of Nifty 50 spot was 17,772 and just after 6 trading days formed the low of 16,850. That was an ordinary move. Just an ordinary move only in the index of Nifty 50. Go and check the chart of gold, silver, Nasdaq 100, Microsoft, US 10-year Treasury bonds, GBP USD, the pair of currency, and at last Bitcoin, BTC USD. What a strong rally established in all mentioned assets. All these mentioned assets set the sharpest rally of the last few months. On the other side, UK 100, the prime index of Great Britain, Nikkei 225 of Japan, Reliance Industries and DAX of Germany dropped in the period of March 9-10 to March 17, dived sharply, nosedived. Now onwards, slowly speed of the moves may increase and after a month or so can witness a strong move. It is an opinion. Same may or may not hold good. This opinion is just for my record, not a suggestion or advice. The suggestion to all my students is just follow the price and price action to identify the trends and reversals. Let's check chart by chart. UK 100 price was somewhere near to 8,000 and dropped to 7,300, almost 10% wiped out from 9th of March. Here US 100, this is the 9th of March and 10th of March formed the lowest low, and from there it rallied from 11,700 to 12,700, again a jump of almost 8-9%. Just look at the gold. Wow, what a movement. New high is being formed. And where was the low? Low was on 9th of this month, 54,700, and from 54,700 it's jumped to 59,900 or 500 just in 7-8 trading days only. Let's look at the silver now. Again a big bounce. Just from the price of 61,000, it touched 68,700 in just 6 trading days. Now, at last, Bitcoin, what a move from 19,500 to 27,500. This is the sharpest move of last many months. What a jump from 19,600 to 27,700 in 6-7 trading days. Here the March 10th walked as a rock. Unbelievable, unbeatable. Nifty, again, here on 9th, it was trading at 17,772 and it dropped to 16,848. Now, 16,848 is a good trend decider.
which I will speak later in this video. Bank Nifty, that also was trading near to 41,700. It reached to 38,600. Big drop in just 5-6 trading days. Reversal established just either on the 9th of March or the 10th of March. Look at the US Treasury 10 years note ETF. This is the 9th of March, and what a rally! What a rally! From 44.9 to 47.2 in just 3 trading days, or clubbed together 6-7 trading days. Gap up, gap up. By the grace of God, weekly trading levels are ready and I am presenting it over here. One of the member student has asked about what is going to be the impact of SVB's collapse. ये मेरा मानना है कि बहुत बड़ा चैलेंज भी हो सकता है और बहुत ये हमारे लिए एक एडवांटेजेस भी हो सकता है। सबसे पहले तो इसके फेलियर होने से और एसवीबी, द फर्स्ट फेडरल बैंक और सिग्नेचर बैंक, इनके कोलैप्स होने से जो रिजल्ट आएगा उसमें सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट आएगा वो स्मॉल और मिड कैप बैंक से आएगा। वहां से हो सकता है बहुत बड़ा डिपॉजिट निकलकर कुछ स्ट्रॉन्ग या बड़े लार्जेस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं उसके अंदर मनी फ्लो करे। अभी तक जो हायर इंटरेस्ट के लिए लोग स्मॉल बैंक्स में या मिड साइज बैंक के अंदर अपना डिपॉजिट रख रहे थे, वो वहां से अपना पैसा निकालकर मे बी बाय सेक्रीफाइसिंग few amount of percentage of interest, they will switch to the largest institutions या बड़े जो बैंक हैं उनके साथ अपने डिपॉजिट को लेकर जाएंगे। दूसरा जो मैं देख पा रहा हूं दैट कैन बी कि जो भी फेड या रेगुलेटर्स हैं वो अपनी लैंडिंग स्टैंडर्ड्स को बैंकिंग सिस्टम में और टाइट करेंगे और उसका इम्पैक्ट साफ कुछ ना कुछ इकोनॉमिक ग्रोथ पर दिखाई देने लगेगा। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट विल टॉक अबाउट द रिसेशन जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इवेंट। दूसरी तरफ अगर ये एक छोटा इवेंट हुआ है तो उससे कोई बहुत बड़ा इवेंट होने से हम बच भी सकते हैं। दोनों प्रोबेबिलिटी है। जब कोई एक छोटा एक्सीडेंट होता है तो एक बड़े एक्सीडेंट से बचने का ट्रिगर भी होता है, और एक छोटा एक्सीडेंट होता है तो सर्च होती है बाकी सब जगह कि वहां पे भी कुछ एक्सीडेंट तो नहीं है, अगर है तो उसकी रेमेडी जल्दी से ढूंढी जाए। कुछ चीजें जो अंडर द कारपेट हैं वो डिस्कवर होने लगती हैं और मार्केट या बैलेंस शीट्स या इकोनॉमी क्लीन अप होने का एक प्रोसेस चालू होता है बिफोर हैविंग ए बिग एक्सीडेंट। तो ये एक इवेंट है जो अच्छा भी हो सकता है और खराब भी हो सकता है। अब दूसरी तरफ अगर टाइटर बैंक लैंडिंग स्टैंडर्ड्स अपनाए जाते हैं तो उसमें जो डिमांड है दैट विल बी मॉडरेट, दैट विल बी लिमिटेड। और बहुत सारे इकोनॉमिक्स का यह मानना है कि इंक्रीमेंटल टाइटनिंग इन लैंडिंग स्टैंडर्ड्स ऑन स्मॉल बैंक कैन स्ट्रेस। इसका एक और इंपैक्ट भी आ सकता है। वो इंपैक्ट ये रहेगा कि जो लगातार इंटरेस्ट रेट फेड बढ़ाता चला जा रहा है, जब भी आता है कि 50 बेसिक पॉइंट से बढ़ा दो, 25 बेसिक पॉइंट से बढ़ा दो, 75 बेसिक पॉइंट से बढ़ा दो, दे मे चेंज देयर स्ट्रेटेजी एंड दे मे not increase the interest rate so aggressively, और हो सकता है कि they can think to reduce the interest rate if with the condition that inflation is not marching northward. दूसरी बात
जो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं उनका जो मानना था कि यूएस के अंदर अगले एक साल में या 2-3 क्वार्टर्स में रिसेशन आने की पॉसिबिलिटी की परसेंटेज इज समवेयर नियर टू 25%, दैट हैज इंक्रीज टू 35%। अगर ये इवेंट एक स्मॉल बैंक्स या मिड साइज बैंक के ऊपर ये हीट है तो मे बी ऑन लार्जर इंस्टीट्यूशंस के ऊपर भी ये हीट होगी, या दूसरे वो बिजनेस जो खाली इंटरेस्ट रेट के ऊपर या डेप्ट के ऊपर आधारित हैं, दे मे आल्सो फील द हीट। और सबसे बड़ा जो स्ट्रेस देखने को मिलेगा वो दैट विल बी ऑन रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में बहुत सारा पुश ये स्मॉल बैंक या मिड साइज बैंक की वजह से होता है, जो नॉर्म्स को इतने अधिक ढंग से फॉलो नहीं करते। उनका कोलेट्रल की क्वालिटी क्या है या उनका रीपेमेंट का पावर कितनी है जो बोरो कर रहा है, तो उसको वो इग्नोर करते हुए या उसको फ्लेक्सिबल होते हुए दे प्रोवाइड द लोन। अगर वो टाइट होता है तो उसमें रियल एस्टेट की एक्टिविटी जो खाली टोकन अमाउंट देकर कुछ प्रॉफिट बनाकर निकलते हैं, वो सब एटलीस्ट ऐसे बायर्स या स्पेकुलेटर्स विल बी आउट ऑफ द बिजनेस। उनके बाहर जाने से जो डील्स हैं वो कम हो जाएंगी और जो सेलर है जो बहुत अधिक प्रॉफिट के ऊपर बैठे हुए हैं उनको भी बेचने में कुछ डिफिकल्टी होगी। अगर वो डिफिकल्टी होती, आई एम टॉकिंग अबाउट यूएस मार्केट, नॉट अबाउट इंडिया और द एशिया, अगर वो कुछ रियल एस्टेट के अंदर कुछ डेंट लगता है तो मैं समझता हूं एक्टिविटी स्लो डाउन होती हैं, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कुछ रियल एस्टेट के प्राइस भी आने वाले 2-3 महीने के अंदर गिर सकते हैं। गिरेंगे तो कहना मुश्किल है, वी कैनॉट डिक्टेट द मार्केट, बट पॉसिबिलिटीज देयर कैन बी सम कूलिंग ऑफ इन द रियल एस्टेट प्राइस। विद दीज वर्ड्स, लॉट्स ऑफ लव, blessings, happy trading and happy investing to all my students. आपके कोई भी क्वेश्चंस हो बिना हेजिटेशन के यू कैन रेज अबाउट इकोनॉमी, अबाउट टेक्निकल एनालिसिस, अबाउट फंडामेंटल एनालिसिस. I will try to answer it out as soon as possible. Love and blessings.